آپ سے مخاطب ہیں. ایک وہ مدرسہ، وہ جامعہ جس جامعہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے اور ان اولیاء کاملین کو درس دیا کرتے تھے، وہ بھی ایک ادارہ ہے، وہ بھی ایک مدرسہ ہے، لیکن وہ ایک فوقیت رکھتا ہے جس کے بارے میں سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے مدرسے کے دروازے سے جو گزر جائے گا اس کے قبر کے عذاب میں اللہ رب العزت تخفیف فرمائے گا. وہ ادارہ تو نہیں ہو سکتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، مولانا کلیم الرحمان صاحب، نعرے تکبیر، جشن غوث الورا. وہ ادارہ نہیں ہے لیکن اس ادارے سے جدا بھی نہیں ہے. بہت خوب، بے شک. بے شک جس جگہ پر کلام اللہ پڑھایا جاتا ہے اور جو پڑھتا ہے، جو پڑھاتا ہے، وہ بھی بے مثال ہوتا ہے، وہ جگہ بھی بے مثال ہوتی ہے. حدیث پاک کے مطابق خیرکم اسی حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین وہ شخص ہے جو پڑھے قرآن اور پڑھائے قرآن. جو پڑھے قرآن اور پڑھاوے قرآن تم میں بہترین وہی شخص ہے. تو جو پڑھے قرآن وہ سب میں بہتر ہے، جو پڑھاوے قرآن وہ سب میں بہتر ہے. جس جگہ پڑھایا جائے وہ جگہ بھی سب سے بہتر ہے. آئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ غوثیت میں منقبت کے چند اشعار پیش فرماتے ہیں. نذرانہ عقیدت بارگاہ غوثیت میں پیش فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. بہت خوب، بے شک. سبحان اللہ. قدم اعلیٰ تیرا، اعلیٰ تیرا. قدم کی عظمت کیا ہے؟ قدم کو یہ بلندی کہاں سے ملی؟ آپ کے قدم ناز کو یہ عظمت کہاں سے ملی؟ جو بڑوں سے بڑوں، جو اونچے سے اونچوں کے سروں سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے. بہت خوب، بے شک. یہ قدم مبارک کو فضیلت کہاں سے ملتی ہے؟ جو قدم مبارک کی بلندی اس قدر ہی بلندی نہیں ہے بلکہ سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ان کا قدم. بہت خوب، بے شک. بہت خوب. وہ بلندی تاریخ روایت بتاتی ہے کہ جب شب معراج کی رجب المرجب کی 27ویں شب ہے اور آمینہ کے لال مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے آپ عرش سے فرش پر مکہ سے لامکہ کی جانب جب چلے، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر جبریل علیہ السلام کی حد آخری ہے. آگے جبریل نہیں جا سکتے ہیں. جہاں تک جبریل جاتے ہیں سرکار ساتھ میں ہے. آگے سدرۃ المنتہا کے آگے کوئی جبریل علیہ السلام کا مقام نہیں ہے، جانے کا راستہ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل کیوں رک گئے، آگے بڑھو. جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب اگر میں بال برابر آگے بڑھا تو رب کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. غور کیجئے گا، جب اس عالم میں اس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رب تعالی نے میری روح کو اس وقت حاصل فرمایا، اس جگہ اس مقام پر حاصل فرمایا جب آپ رفرت کی سواری پر چلنے لگے. تو آپ کے روح مبارک کو جب حاصل کیا تو آپ کے شان اقدس پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا قدم مبارک رکھ کر کے
आप रप रप पे सवार हुए और फरमाया, अरे अब्दुल कादिर, मेरा ये कदम तुम्हारी गर्दन पर है और तुम्हारा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे-ए-बरा, मस्तके आला हज़रत अब्दुल्ला हज़रत हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो कदम है जिस कदम से निस्बत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से, तो क्यों न वो सबके सरों से आला हो। और जब आप रमजान मुबारक की पहली तारीख को पैदा होते हैं, जब आमिना का लाल मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाया, तो आपके पुश्ते अनवर पर मुहर नबुव्वत थी। और जब इमामुल औलिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर मुईनुद्दीन जिलानी जब बगदाद की खुरासान के इलाके में आप तशरीफ लाते हैं, शहर जिला में तशरीफ लाते हैं, तो आपके कंधे, आपके शाने अक़दस पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की मोहर लगी। निस्बत है। अब आगे देखिए, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है कलवा तेरा। सर भला कोई आपकी सर की हकीकत को कोई कैसे समझ सकता है, सर की हकीकत को कैसे जान सकता है। अरे हकीकत तो यह है कि सारे औलिया अल्लाह आपके कदमों की तलवों को, अपने आंखों को हुसूल सादत की खातिर मस करते हैं। तो जब सारे औलिया इकराम हुसूल सादत के लिए आपके कदमों से अपने आंखों को मस करते हैं, तो आपकी जब कदम की हकीकत को नहीं पहचान सके तो सर की हकीकत तक हम कहां पहुंचा सकते हैं, कहां पहचान सकते हैं, कहां सर की बात हम कर सकते हैं। सर की हकीकत क्या है, कदम तक पहुंचो। कदम क्या आला मकाम रखता है कि वो कदम मुबारक है, वो तलबे मुबारक है गौसे आजम के, जिसे सारे औलिया किराम अपनी आंखों से मस किया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब ज्यादा तवील में नहीं जाना चाहता हूँ, अभी बिलखुसूस किताबें लाया, बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर मिसबाही साहब मुत्तज़िलुल अली व नूरानी का खिताब नायाब होगा, जिसे हम सभी हजरात को समाअत करवाना होगा। थोड़ी ही देर में हजरत तशरीफ लाने होंगे। और कीजिएगा, हुजूर सय्यदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद में वास फरमा रहे हैं, और वास के दरमियान आपने ऐलान फरमाया, कदम हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है, हर अल्लाह की वली की गर्दन पर है। जब ये ऐलान फरमाया, रिवायत के मुताबिक कि 360 औलिया कामिलीन उस तरफ हाजिर थे, सबों ने बारगाह गौसियत में अपने सरों को खम कर दिया। यहाँ तक कि दुनिया आलम में जहाँ जहाँ औलिया कामिलीन थे, सबके कानों तक के गौसे आजम की ऐलान की आवाज पहुंचती है। सबों ने अपने सरों से अव्वल से आखिर तक जो औलिया कामिलीन है, सबों ने सरों को खम कर दिया। बल्कि गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, बल अलर रासी वल ऐन, है गौसे आजम आपका कदम मुबारक सिर्फ हमारे कंधों ही पर नहीं है, बल्कि हमारे आंखों पर और सरों पर भी है। अल्लाह अल्लाह। बरेली की सरजमीन से हजरत बरेली की सरजमीन से मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुकार उठते हैं, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। अल्लाह। सारे फरमाता हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने यह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं वो है आंखें, वो आंखें, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं फहरिस्त में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सैकड़ों मील दूर पर एक
शेख सिनानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वली कामिल थे। वो खाने काबा के तवाफ के लिए अपने मुरीदीन के साथ जा रहे थे। और कीजिए, मुरीदीन के साथ जा रहे थे। जब उनकी कान तक ये आवाज पहुंची तो उनमें गुरूर पैदा हो, सीना तान कर अकड़ गए और जवाब में आपने क्या अल्फाज निकाले, ऐ गौसे आजम आपका कदम तो सब औलिया अल्लाह की गर्दन पे तो हो सकता है, लेकिन शेख सनानी की गर्दन पर नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही शेख सनानी की जबान से ये लफ्ज निकलता है, सरकार गौसे आजम सैकड़ों मील दूर बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ फरमा होकर आपके इस आवाज को समाप्त फरमा लेते हैं। और जैसे ही आपकी कान तक ये आवाज पहुंचती है, बारगाहे गौसियत में जलाल तारी हो जाता है। आप इरशाद फरमाते हैं, एक शेख सनानी तुम्हारे गर्दन पर मेरा कदम तो नहीं होगा, लेकिन खिंजीर का कदम होगा। अल्लाह अल्लाह, खिंजीर का कदम होगा। एक तरफ शेख सनानी के इनकार को देखिएगा, एक तरफ गौसे आजम की जलालत का जवाब देखिएगा। थोड़े दिनों के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, जब एक रात का सन्नाटा छाता है, जगह एक जगह पड़ाव डाला जाता है, उस जगह रहने लगते हैं। करीब में एक गिरजा घर है, ईसाइयों का गिरजा घर है। उसके करीब में जब पड़ाव डाल देते हैं तो ईसाइयों के घरों में एक खूबसूरत लड़की होती है, जिसकी लड़की की खूबसूरत हुस्नो जमाल देख करके शेख सनानी उस लड़की पर आशिक हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इस कदर आशिक हो गए कि शादी की बारी आ गई, निकाह करने की नौबत आ गई। जब निकाह की बारी आई तो ईसाइयों ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ शादी का रिवाज ये है कि शादी करने से पहले, निकाह करने से पहले हमारे खिंजीरों को उसे चढ़ाना पड़ता है। जिसके साथ निकाह होता है उसको हमारे खिंजीरों को चढ़ाना पड़ता है। आप इस शर्त को पहले आप मुकम्मल कर लीजिए। एक तरफ गौसे आजम के फरमान को देखिए। शेख सनानी गौसे आजम ने फरमाया था कि आपके कंधे पर खिंजीर का कदम होगा। अरे कदम ही नहीं, शेख सनानी का हाल यह है कि जब उनको चराने के लिए जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनको अपने कंधों पर लेकर के चलते हैं, पूरा पूरा जिस्म अपने कंधों पर बिठाते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। जब आप शादी की निकाह की बारी आती है, गिरजा घर में है, एक तरफ शराब का प्याला है, एक तरफ एक हाथ में खिंजीर का गोश्त है। ऐसे माजरे में सारे मुरीदीन वापस हो जाते हैं कि मेरा पीर अब पीर के लायक नहीं रहा है, इस पे तो गजब नाजिल हो गया है, ये तो अजाब में मुब्तला हो चुका है। सारे मुरीदीन वापस चले जाते हैं। चंद मुरीदीन दो चार होते हैं, वो वापस नहीं जाते हैं। वो ये कहते हैं, उनके इरादे ये हैं कि कल मेरा मुरीद, मेरा पीर जब सालिम था, जब सही था, तब मैं उसके साथ में था। आज मेरा मुरीद एताब में पड़ गया है, मेरा पीर मुसीबत में पड़ गया है, तो मुसीबत के वक्त हम कैसे साथ छोड़ सकते हैं। गौर कीजिएगा, जब उन मुरीदीन ने देखा, एक तरफ खिंजीर का गोश्त है, एक तरफ शराब का प्याला है, मामला बहुत पुरखेज है, मामला बहुत नाजुक है। उन मुरीदीनों ने बारगाहे गौसियत में इस्तिगासा किया, ऐ गौसे आजम मेरे पीर की खता को माफ कर दीजिए। मैंने सुना है आप पीराने पीर हैं, आप दस्तगीर हैं, आप लोगों की हाजतों को पूरी करते हैं, लोगों की मुश्किलों को आसान फरमाते हैं। ऐ गौसे आजम मैं गुनाहगार मुरीद शेख सनानी का हूँ, इसलिए पीर की दर्द को रखते हुए आपकी बारगाह में पीर के लिए माफी तलब करता हूँ। आप मेरे पीर की खता को माफ कर दीजिए। इधर इस्तिगासा करते हैं, उधर शेख सनानी की दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। इतने ही में शेख सनानी ने उन दोनों तश्तों को फेंक देते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, ऐ मुरीदो मेरे चेहरे को स्याह कर दो और मेरे हाथ और पैर को जंजीरों से जकड़ दो। जिस तरीके से एक मुजरिम को हाकिम के सामने पेश किया जाता है, इसी शक्ल और सूरत में मुझे बारगाहे गौसियत में पेश कर दो। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। जब मुरीदीन ने इस हुक्म के मुताबिक शेख सनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस
तरह आपको जंजीरों में जकड़ा, चेहरे पर स्याही लगाई, बारगाह गौसियत में पेश किया। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखते ही देखते शेख सिनानी को सीने से लगाया और फरमाया, ऐ शेख सिनानी, जिस कौल का तुमने इनकार किया था, तुमने समझा था मेरा ऐलान है, वो मेरा ऐलान नहीं था, बल्कि खुदाए वहदहू ला शरीक का ऐलान था। तुमने खुदाए वहदहू ला शरीक के कौल का इनकार किया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इताब में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप सीने से लगाते हैं, हमाम में गुस्ल खाने में आपको गुस्ल दिया जाता है, उसके बाद आप जुब्बा शरीफ अता फरमाते हैं, आपकी वलायत को आपको वापस फरमा देते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। खत्म कर दीजिए। बस इसी पर मैं इत्तिसार करता हूँ। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ इनका शफक़त औरतुल लिमुरीदी बिल मग़रिब व अना बिल मशरिक़ि लस्तरतुहा। मेरा मुरीद अगर मगरिब में हो और मैं मशरिक में हूँ, अगर वो किसी हाजत के वक्त मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सदर की पर्दा पोशी कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। उम्मीद है बेशक आज इस इदारे मदरसा दारुल उलूम फैज़ान रज़ा में मखसूस महफिल पाक का इनकाद किया गया, जिसे खत्म कादरिया कहा जाता है। गौसे आजम की बारगाह में इस्तग़ासा है कि हम गुनाहगारों की इस वज़ाइफ को, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा करके और हम सबों की हाज़िरी कबूल फरमाए। दुआ की परवरदिगार आलम हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम सबों को शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना